So good evening to everybody. Come back. So today we are going to discuss with the chapter wise test number 4, laws of motion paper discussion. Chalo. See the first question right now. I'm taking the first question. Yeah. Chalo. See the first question, beta. A bob of mass. How many of you written this answer correct, beta? A bob of mass 0.1 kg is hung from the ceiling. Am I audible to everyone? From a room of a string 2 meter long to set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory? Trajectory means path. Trajectory of the bob if the string is being cut when the bob is at one of its extreme position. Matlab bob aisa hai basically. Just see the diagram right now for this one. And this is your mean position. You know it, isn't it? And this is your extreme position. यहाँ पर कहीं पर extreme position पे गया and here is the velocity. So it is making the to and fro motion about this one. अब यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली देखो राइट नाउ. सो व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया. सो इफ यू हैव कटेड दिस स्ट्रिंग राइट नाउ सो जैसे स्ट्रिंग कट कर देगा दिस बॉडी विल बी टेंशन इसमें कितना बन जाएगा 0. सो द मोमेंट द टेंशन बिकम्स 0 इन दिस वन दैट मींस दिस इज अंडर द फ्री फॉल राइट नाउ. तो बॉडी यहाँ से तो सीधा ग्राउंड पे आ जाएगी इस तरह से. सो द पाथ फॉलोड विल बी व्हाट ए स्ट्रेट लाइन वर्टिकली इन द downward direction. So इसका आंसर होना चाहिए first option must be the answer for this question. Clear? Is it clear? Am I audible beta? Am I audible to everyone? Am I audible beta? अरे थम्स अप तो भी दे दो कि ऑडिबल हो कि नहीं हो, कम से कम समझ में तो आ जाएगा. सुनाई दे रहा हूं मैं? I'm not able to listen any of one of your voices. Yes, sir. चलो ओके. Yes, sir. ओके ओके चलो ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर है बेटा सभी को? So bob of mass 0.1 kg is hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter. And what is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme position? ये इसका extreme position है. Extreme position पे आपने इसका string cut कर दिया तो tension 0 हो गया. तो this will be under only the gravity के force में रहेगा. तो वहां से सीधा नीचे गिर जाएगा. So it will be a straight line vertically in the downward direction. So next question. A pebble of mass 0.05 kg is being thrown vertically upwards. The direction and magnitude of the net force on the pebble through its journey is how much? Can anyone tell me the answer for this one? A pebble of mass 0.01 kg is thrown upwards. The direction and magnitude of the net force on the pebble throughout its journey will be equal to how much? देखो the net force acting on the pebble is vertically बेटा downward direction. आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका तो जब ऐसे ऊपर जाएगा तो इसका वेट तो नीचे टिकेगा ना. सो दैट इज नथिंग बट इफ यू आर m into g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो इसका नेट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फोर्स कितना हो जाएगा इस पे? F is equals to your mass into your acceleration. मास दे रखा है कितना 0.05 और इट इज अंडर द ग्रेविटी ना, तो ग्रेविटी का मतलब 9.8. तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से देखो. 5 into 10 to the power of -2 के +2 -2. -2 आ गया सभी को. Yes. 9.8 मतलब कितना 98 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है ना. तो 5 into तो कितना आ जाएगा जल्दी से देखो इसको. 10 to the power of -3 हो गया. 0.49. 0.49 आया सभी को. 0.49 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन बेटा. डाउनवर्ड के अपवर्ड? डाउनवर्ड. Downward direction. इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. A bullet of mass 0.04 kg is moving with a speed of 90 meter per second, enters a heavy wooden block and it is stopped in 60 centimeters. What is the magnitude of the average resistive force exerted by the block on the bullet? ये तो रेगुलर क्वेश्चन ही है बेसिकली. ये मान के चलो अपना एक ब्लॉक है, ठीक है ना. इसके अंदर अभी मेरे पास एक बुलेट है. इस तरह से बुलेट एंटर हो रही है यहाँ पर से कहीं पर. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u is equals to 90 मीटर पर सेकंड थी, isn't it? और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ये बुलेट जो है ना रेस्ट पे आ गई. कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करके रेस्ट पे आ गई? 60 सेंटीमीटर. यानी इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0. सो रेसिस्टिव फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? वुड, यानी जो भी उसमें बह रहा है बेसिकली. तो वुडन ब्लॉक जो है ना इट इज एक्सर्टिंग द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इस पे मैं फोर्स निकालने का तरीका देखो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा. Force will be equal to your how much for me? F is equals to your m into your F is equal to mu square by 2f. m into your a.
mass, I can write acceleration by using the kinematic equation. V square minus U square is equals to 2a into your S. ठीक है ना? तो I can write this one here right now. V square minus of U square is equals to 2a into your S. Acceleration निकालो उसमें से, तो acceleration आ जाएगा यहाँ पर V square minus U square divided by 2 into your S. आ गया सभी को? तो इसमें से अभी मास डाल दो, मास का वैल्यू है मेरे पास, मास की वैल्यू कितनी है देखो राइट नाउ, सो मास की वैल्यू है 0.04, फाइनल वेलोसिटी है 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 90, तो ये हो गया 90 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 2 into योर 0.6, डिस्टेंस ट्रैवल है 60 सेंटीमीटर से, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो 60.6 मीटर्स हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मीटर्स पर है तो इसको भी आप लोग को मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है, तो इसको कैलकुलेशन कर लो, उसका आंसर आ जाएगा बेसिकली बेटा, तो इसका आंसर रफली विल बी गेटिंग एज 270 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, fourth one, draw the normal reaction on the masses small m and as well as of a capital M for the following cases. Now for draw the normal reaction on the masses small m and capital M for the following cases per definition. देखो जल्दी से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल एम से कैपिटल एम, तो हो गया ओके फाइन. क्या ऑप्शन हो सकता है बेटा, जल्दी से बताओ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. फोर्थ ऑप्शन. 3 क्या बोले, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है. नन ऑफ द अबव है, नहीं नहीं, थर्ड ऑप्शन होगा ना बेटा, एन के ऊपर Yes, N2 yes, N2 और third. इसके ऊपर इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई होप यू कैन डू दैट क्वेश्चन. चलो सिक्स्थ वन, फिफ्थ वन देखो, द शेल ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, देखो दिस विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस वन बेटा, एंड दिस विल आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस वन, एंड कैपिटल एम विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड ग्राउंड विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस वन, ऐसा हो जाएगा सीधा सीधा. ठीक है. फिफ्थ वन, ए शेल ऑफ मास 0.020 kg, यानी 2 के बाद का जो 0 है ये अपने को यूज नहीं है बेटा, इसको आप छोड़ दो. kg is being fired by a gun of mass 100 kg if the muzzle speed, है ना, जो स्पीड से वो जा रहा है, of the shell is 80 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा, आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, v bar will be equal to your m into your velocity of the bullet divided by mass of your gun. तो मास ऑफ योर शेल कितना है 0.02 into velocity of your muzzle speed of the gun कितनी है 80 divided by mass of your gun कितना है बेटा 100. तो this is the speed of the gun we will be getting, this is the speed of your gun. तो उसको सिंपलीफाई कर लो, that will be giving the answer. So this will be coming out for the fourth option for me, the answer for that. ठीक है चलो. Sixth one, the normal reaction that is acting on the block shown in the following figure when the block moves horizontally is how much. I hope everyone might have been done this question also. बहुत ही easy question है, तो 90% के बच्चे करना चाहिए. तो पहले वाला जैसे ही इसको आया तो उसको रिजॉल्व कर लो, तो ये हो गया मेरे पास f cos थीटा और ये हो जाएगा ऊपर मेरे पास f into और sin थीटा. सो फ्री बॉडी डायग्राम, उसके साथ इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल लगेगा n और इस बॉडी का वेट लगेगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. कुछ और फोर्सेस लग रहे हैं देखो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस, यहाँ पर लिख दो मैं n प्लस ऑफ योर f into sin थीटा विल बी इक्वल टू द वेट mg. ठीक है ना, तो n विल बी रिटन एज हाउ मच फॉर मी, n इज इक्वल्स टू योर mg माइनस ऑफ f into sin थीटा लिख सकता हूं मैं बेसिकली. तो सिक्स्थ वन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, व्हेन द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली द नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, n इज इक्वल्स टू योर mg माइनस f sin थीटा, थर्ड ऑप्शन. आई होप यू माइट हैव बीन डन दिस क्वेश्चन बेटा. Yes, sir. चलो 10th वन देखो बेटा, सॉरी 7th वन. 10 1 rupee coins are being put on the top of each other of a table. Each coin has a mass of m kg. The magnitude and the direction of the force is 4 mg. तो इसके लिए पूरे क्वेश्चंस करना पड़ेगा. When the force on the fourth coin is due to all the coins on the top, when the force on the fourth coin is exerted by the eighth coin, when the reaction of the sixth coin is exerted on the seventh coin, none of the. अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन है, एग्जामिनेशन हॉल में जब लिखोगे ना आपके पास क्लैरिटी होगी तो ही ये क्वेश्चन करोगे, वरना 99.99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन इवन दो इजी रहने के बावजूद गलत करके आने के ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा है. तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से प्लान करना, देन ओनली यू कैन डू इट आउट. देखो बेटा 10 1 rupee कॉइन है मेरे पास, तो एक के ऊपर एक रख दो उसको सभी पहले राइट ना. सो आई एम राइटिंग ऑल दैट कॉइंस वन अबाउट द अदर. तो मेरे पास यहाँ पर कहीं लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया 1, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, ये हो गया, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है यार. चलो 1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10, ये 10 रुपी कॉइन्स है ऐसा. अब मुझे
सिस्टमेटिक ड्रॉ करना थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो 10 1 rupee coins are being placed one above the other। मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसके लिए ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है चलो। तो 10 1 rupee coins are being put on the top of each other, each coin has a mass of mkg। okay, very good। the magnitude and the direction of the force is 4 mg। पहला ऑप्शन देखो, so there are only the 3 coins बेटा on the 7th coin, counting from the bottom, counting from the bottom। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, 9 and 10। 7th coin के ऊपर ऊपर कितने हैं बेटा? Since there are only 3 coins on the 7th coin, counting from the bottom, so the total force on the 7th coin is the sum of the weight of only 3 coins। तो 7th coin के ऊपर force कितना हो जाएगा बेटा? F is equals to your mg, 3 times of your mg। ऊपर 7 के ऊपर कितने हैं? 3 ही है ना। On counting from the bottom, the force on the 8th coin कितना होगा बेटा? Only 2 mg होगा। तो net force कितना हो जाएगा? Net force on the 8th coin on the 7th coin will be equal to how much for me? Again 3 mg, isn't it? तो क्या ऑप्शन लिखोगे? 7th coin is exerted on 8th coin। When the force on the 7th coin is exerted on the 8th coin, that will be equal to how much for me? F will be equal to 8th के ऊपर कितने रहेंगे? 2 mg रहेगा, और उसके बाद प्लस mg रहेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 mg आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देखो, व्हेन द रिएक्शन ऑन द 6th कॉइन इज एक्सर्टेड ऑन द वन, तो मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं आप लोग की क्लियरिटी के लिए। नाउ रिएक्शन ऑन द 6th कॉइन, 6th कॉइन देखो बेटा, 6th कॉइन, सिंस देयर आर 4 कॉइन्स ऑन द 6th वन, सो टोटल फोर्स ऑन 6th कॉइन कितना हो जाएगा बेटा? 6th कॉइन के ऊपर कितने फोर्सेस है राइट? 1 2 3 4, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ योर mg आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हेन द रिएक्शन ऑन द 6th कॉइन इज एक्सर्टेड ऑन द 7th कॉइन, तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर सेम रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन मस्ट बी द आंसर फॉर दैट। तो 6th कॉइन के ऊपर होगा बेसिकली, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो 8th क्वेश्चन देख लो जल्दी से। Two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on a table against a rigid partition। The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15। A force of 200 Newton is applied at a point A। The action reaction forces between A and B will be equal to how much? Again very good question, simple question, 2 लाइन का आंसर है, लेकिन समझने की कोशिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर एक्चुअली 2 ब्लॉक्स होना चाहिए, आप लोग का डायग्राम में थोड़ा गलती हो गई, तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक इस तरह से आना चाहिए, दिस वाला। तो ये हो गया 2 बॉडीज, ये हो गया ए एंड बी ऑफ मासेस, इसका कितना है 5 kg और इसका कितना है 10 kg। इन कांटेक्ट विद एज रेस्ट ऑन ए टेबल ऑन ए रिजिड बॉडी, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द टेबल, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.15 है, और फोर्स यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल्स टू 0.15। तो एक्शन एंड फोर्स कितना लग रहा है? 200 लग रहा है। द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, यानी ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो दोनों के बीच में का नॉर्मल फोर्स हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन योर ए विल बी इक्वल टू योर म्यू मास ऑफ योर ए इनटू जी। म्यू कितना है? 0.15। मास ऑफ योर ए कितना है? 5। जी वैल्यू कितना लोगे? 9.8। So this will be equal to 5 15s are 15 5 is 75 into 9.8 10, so this will be 7.35 Newton। So अब हम लोग को निकालना क्या है? रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ योर ए ऑन योर बी, तो कितना हो जाएगा बेटा? 200 न्यूटन। उसको ऑपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना ऑपोजिट, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन योर ए कितना है? 7.3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 200 माइनस 7.3, दैट विल बी इक्वल टू 192.65 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। आप रफली भी कर लोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। अगर जी वैल्यू आप 10 लेके भी करोगे तो आपको नियर बाय आंसर आप इसका चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आ गया समझ में? चलो 9th क्वेश्चन देखो बेटा। A block of mass 15 kg is being placed on a long trolley. The coefficient of static friction between block and the trolley is 0.18। आप लोग म्यूट हो जाओ बेटा जरा, it is getting confusion, please try to mute yourself, use the other pen। कौन सा पेन यूज करूं बेटा? डार्क यूज कर लेता हूं, चलो ब्लैक दिख रहा है ना सभी को, ठीक है ना। चलो, a block of mass 15 kg is being placed on a long trolley। The coefficient of static friction between the block and trolley is 0.18। The trolley accelerates from the rest with the 0.5 meter per second। The friction between the block and the trolley will be equal to how much? अब ऐसे वाला क्वेश्चन आप लोग को सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज द बॉडी इज बीन एक्सेलरेटेड इन द फ्रंट डायरेक्शन। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बताओ? पहले एक्सेलरेशन निकालो, कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन ना, है कि नहीं?
तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वन, दैट इज सूडो फोर्स। तो मास का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर? मास कितना है बेटा? A is equals to, सॉरी ये इसका होना चाहिए, एरेज करता हूँ। A is equals to how much for me? Mu g. A is equals to mu into g. Mu की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.18 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने को 1.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। So frictional force between the block and the trolley will be equal to how much beta? So frictional force must be equal to how much? अब लॉरी के पास एक्सेलरेशन कितना आया? 0.5. So this shows that there is a relative motion between the block and trolley. So during this one the block will be equal to how much beta? Force कितना आ रहा बताओ जल्दी से? So frictional force will be equal to mass into acceleration. मास कितना है मेरे पास? 15. एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? 1 पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली कितना है? 0.5 या 0.5। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड ट्रॉली आ जाएगा मेरे पास 15 इंटू 0.5, यानी ये हो गया 7.5 न्यूटन। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप, F इज इक्वल टू m इंटू ये 7.5 न्यूटन विल बी द आंसर। ठीक है, चलो 10th वन। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी व्हेन resultant force acting on it begins to decrease, resultant force on it is 0, resultant force is at right angles to its direction of motion, and resultant force on it begins to increase। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? कोई बता सकता है? एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी कब? अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास? F इज इक्वल टू m इंटू ये। अगर फोर्स मान के चलो जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? m इंटू ये। तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा ना, दैट मींस द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। In which case the magnitude of the net force acting on the stone of mass 0.1 kg is 0.98 न्यूटन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्स का कंडीशन लगाना है। सो फोर्स इज नथिंग बट ड्यू टू योर m into your g। तो एक एक का कंडीशन लगा के देखो, देखो कितना बन रहा है राइट नाउ। सो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू योर मास इनटू योर एक्सेलरेशन। तो एक एक का पूरा करना पड़ेगा जस्ट आफ्टर इज बीन थ्रोन। In which of the case the magnitude of the net force acting on the mass of 0.1 kg is 0.98 newton? तो जस्ट इट इज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स विल बी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स हो जाएगा मास, मास की वैल्यू कितनी है? 0.1 इनटू योर 0 पॉइंट, यानी इट विल बी अंडर ग्रेविटी 9.8। तो ये कितना आ रहा है? 0.98 न्यूटन आ रहा है। इन विच केस द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 0.1 kg is 0.98 न्यूटन। क्या ऑप्शन लिखोगे बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में तो 0.98 आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी हो गया। जस्ट इट इज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 9.8। तो इसके लिए भी कितना आ रहा है? 0.98 न्यूटन ही आएगा ना, क्योंकि ड्रॉप है एंड ट्रेन इज मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ग्रेविटी हो जाएगा। The next one, it is just after it has been dropped from the window of the train, accelerating with 1 meter per second. So force is again gravitational pull beta. Acceleration is acting in the downward direction. इसके लिए भी same हो जाएगा. It will be equal to your 0.1 into your 9.8. तो इसके लिए भी कितना आ जा रहा है? 0.98 न्यूटन ही आ रहा है. So net force will be equal to how much beta? Force will be equal to your 0.1 Newton. So I can write the answer for this one. What option बेटा? All of the above लिख सकता हूँ इसके। चलो 12th one देख लो बेटा। So when a horse pulls a cord, the force that makes the horse run forward in the force exerted by the horse on the ground, the horse on the cord, the ground on the horse, the ground on the cord. Again, easy question. I hope everyone might have been given the answer for that one. Newton's third law, equal and opposite reaction. जितना horse कॉर्ड पे exert करेगा force, ground पे उतना ही ground exert करेगा on the horse. So that is because of the force exerted by the ground on the horse. Your third option will be the answer. 13th one. A nucleus at the rest in the laboratory frame of reference, it disintegrates into two smaller nuclei. Which of the following statement is correct? The two smaller nuclei will have the same magnitude of momentum only when the two have same masses. The two smaller nuclei will have equal and opposite velocities. The two smaller nuclei will have equal and opposite momentum. Cannot be predicted. क्या हो जाएगा आंसर बताओ जल्दी? Conservation of linear momentum beta. हाँ. So two smaller nuclei will have equal and opposite momentum. Third option will be the answer for that one. Very good.
14th वन देखो बेटा, ए लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर आप लोग खाली अननेसेसरली पुल्ली, डबल पुल्ली, ट्रिपल पुल्ली, वो पुल्ली, ये पुल्ली कंस्ट्रेंट्स कर ले तो बैठोगे ना, तो टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होगा न्यूटन लॉस में। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप लोग करना है और जरा टाइम लगा के करना है। ये कितने बेसिक से देखो, पूरे एक ही पेपर के अंदर दो दो लाइन में आंसर्स निकालने के क्वेश्चन ही है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो 14th वन देख लो बेटा, a lift is been moving upwards with increasing speed and with a constant acceleration a, the apparent weight will be equal to how much? ये भी आप लोग को आने वाला आंसर है, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा। when the lift is moving in the upward direction, normal reaction will be equal to how much बेटा, mg plus of your ma, isn't it? So it will appear to be actual weight, it is more than the actual weight and it have a fixed value of, second option will be the answer for this one. चलो 15th वन देख लो बेटा, the cyclist speeding at 18 km per hour, it is your 18 km per hour, तो 18 km per hour को आप लोग को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 18 into your 5/18, 18 चले गया तो ये आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आ गई। तो अब मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए साइक्लिस्ट इज स्पीडिंग एट 18 km per hour ऑन ए लेवल रोड, इट टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस, तो ये हो गया मेरे पास स्पीड, रेडियस दे रखा है मेरे पास 3 meters without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tire and road is mu value दे रखा है 0.1. When the cyclist slips while taking the turn, while the cyclist slip while taking the turn, no as 50% of chances of slipping, data insufficient. Again very good question. Maximum velocity for slipping का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, mu max is equals to mu r into your g. तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.1, आर की वैल्यू है 3, जी की वैल्यू है 9.8 या 10 ले लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1.7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कितनी है 5 है, तो 5 से भी कम है कि नहीं? So therefore the cyclist will slip because its speed exceeds the maximum speed part deflection. तो स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट कितनी है 5 है, लेकिन अपने पास अब मैक्सिमम स्पीड कितनी है 1.7 ही है, लेकिन स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट क्या है, मैक्सिमम स्पीड से भी ज्यादा, एक्चुअली 1.7 से कम होना चाहिए अगर स्लिपिंग नहीं होना तो, लेकिन यहाँ पर 1.7 से तो बहुत ज्यादा है, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यस इट विल ट्राई टू स्लिप। चलो नेक्स्ट वन 16th वन, तो आंसर आपको सभी को मालूम होगा, द एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम ग्राफ विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इंपल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, 2 and 3, कौन बोलेगा जल्दी से आंसर? 2 and 3. 2 and 3 obviously, so change impulse is nothing but what, change in momentum, so fourth option लगा के आना चाहिए सीधा सीधा। चलो 17th वन, which of the following is the best answer, action and reaction are simultaneous, action and reaction act simultaneous, obviously that is the true for that one, which of the following is best answer बोल रहा है, action and reaction act on two different bodies and therefore do not cancel out the effect on each other, that is also true, force always occur in pair, that is in isolated force is not possible, that's also true, so all are correct, so obviously all are correct for this option। 17th one also very good question। 18th one देख लो बेटा, अब half an hour से ज्यादा हो गया यार टाइम। A monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can stand maximum tension of 600 Newton, in which of the following cases will the rope break? ये आप लोग को करना है, करोगे ये पे, ये देखो टेंशन यहाँ पर है और यहाँ पर रोप है और यहाँ पर मंकी लटका हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, तो ये हो गया मंकी और इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं बेटा, क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन 6 मीटर, जब ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो टेंशन कितना हो जाएगा बेटा, T इज इक्वल्स योर mg प्लस ऑफ योर m इंटू योर ये, तो ये कितना बन जाएगा, मास तो कॉमन हो जाएगा 40, जी की वैल्यू है 9.8 प्लस एक्सेलरेशन है 6, तो ये बन जाएगा 632 न्यूटन। तो क्लाइम्स अप, तो मंकी मैक्सिमम कितना है 600 है और अपने को कितना आ रहा है 632, अगर ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन में आपको आंसर आ गया, तो क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन 6। अब बाकी के भी आप लोग चेक कर लो, ऑप्शन 2 के लिए कितना हो जाएगा 9.8 माइनस 4, और थर्ड ऑप्शन के लिए कितना हो जाएगा फॉल्स फ्रीली डाउन, यानी टी विल बी इक्वल टू योर mg, एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए फॉल्स फ्रीली मतलब p इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दैट वन। चलो समझ में आया ये, फिर एक बार बोलो, देखो जब ऊपर जा रहा है तो t विल बी इक्वल टू mg प्लस ma, अगर नीचे आ रहा है तो t इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ योर ma, isn't it? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रोप ब्रेक बोल रहा है, तो पहले वाले में तो फोर्स ऑलरेडी 632 के उसे 632 है, यानी जो मैक्सिमम से उससे ज्यादा है, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन का ही आंसर इसका टिक कर दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट वन देख लो 19th one. An helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second. The crew and the passengers weigh 300 kgs, in which case the magnitude of the force is 744 newton. ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा. Helicopter of mass 1000 kg is rising with a vertical acceleration, यानी इसके लिए कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो एक ही फॉर्मूले पे कितने प्रॉब्लम आ गए देखो, mg प्लस ऑफ योर m इंटू योर ये हो जाएगा m कॉमन इंटू g प्लस ये. तो मास कितना है मेरे पास 300, g की वैल्यू ले लो 10, एक्सेलरेशन कितना है 15, तो ये बना कितना 300 प्लस ऑफ योर सॉरी इनटू योर 25, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 7 कितना दिया हुआ है 744 न्यूटन आ रहा है क्या देखो 25 3 75 हाँ आ रहा है. तो फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर, एक्शन ऑफ द रोटर, फोर्स ऑन द डेट वन, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द क्रू एंड एज वेल एज ऑफ योर पैसेंजर. तो दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम मी 7550 तक आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. So in which case the magnitude of the force is this one, मतलब force on the floor by the crew and the passenger must be equal to this much. Action on the rotor तो हम लोग को मालूम नहीं होगा. Force on helicopter due to surrounding air वो भी negligible होगा. None of these. First option is the best option. I can write the answer for this one. 20th one. A body of mass 2 kg is being placed on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between body and the plane is 0.2. ठीक है ना. Body of mass 2 kg is being placed on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between these two is equals to how much? जितना होगा जल्दी से बताओ बेटा. पूरा करना पड़ेगा यार, अच्छा वाला क्वेश्चन से. Body of mass 2 kg is being placed on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between body and the plane is 0.2. Then body will move in the forward direction if force is 4 Newton. Body will move in backward direction with acceleration 0.5. Force is 3 Newton. If F is 3 Newton, then the body will be in the rest condition. Both F1 and 3. पूरे क्वेश्चंस दिया हुआ, अच्छे खासे क्वेश्चंस दिया और पूरे ऑप्शंस को आपको कंपलसरी करना है. तो पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो इसका. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. जब ब्लॉक आएगा तो ये हो गया म्यू इनटू योर एम इनटू योर जी होगा, that is equals to 0.2. मास की वैल्यू हो जाएगी 2, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8. तो दिस विल कम फॉर मी 3.92 न्यूटन. ठीक है ना. तो फर्स्ट वन में देखो, since applied force is how much for me 5 Newton, so the body will start to move in forward direction. Hence this option is also correct for me because friction आपका 3.9 ही है, लेकिन आप force लगा रहे हो 4-5 Newton. Second one में देखो बेटा, if the applied force is lesser than the limiting friction, then the body does not move. Hence the option is incorrect for me right now. So second option is incorrect for me. And third one is right now for me what? For if the body will move in the backward direction with acceleration 0.5 meter per second, force is equals to 3 newtons per deflection. It is incorrect beta. The coefficient of friction, the body is the coefficient of friction between block and the plane is 0.2. Then the body is moving in the forward direction. देखो इसका, if F is 3 Newton, then the body will be in the rest condition. The reason is same as in option number 2 beta. Hence option number 3 is also wrong. क्या हो रहा है देखो, if the body will move in forward direction, if force is 5 Newton, limiting friction कितना है 3 point nu. So applied force कितना है 5 Newton. So the body will start moving in the forward direction. Hence this option is correct for me beta. First option correct है ना. Body of mass 2 kg is being placed on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.2 Newton. 0.2 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पर कितना है मेरे पास 3.9 न्यूटन आया. हाँ तो सेल्फ एडजस्टिंग होता तो ये नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि अपने को फ्रिक्शन होना है कितना 0.2, ये तो 0.2 से ज्यादा आ गया ना. तो यहाँ पर फोर्स है कितना 3 न्यूटन, एक्सेलरेशन है कितना 0.3, तो ये भी नहीं होगा. तो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो बोथ 1 and 3 आर करेक्ट लिख सकता हूँ मैं. हाँ ओके चलो 21 देख लो बेटा जल्दी से. For a system to follow the law of conservation of linear momentum during collision, the condition is what? The total external force acting on the system is 0. Total external force acting on the system is finite, and time of collision is negligible. Total internal force acting on the system, external force on the system must be equal to 0. तो direct मैं first option लगा सकता हूँ because that is the best situation for this one. A, B only, C only, A and B. No, A will be the answer for this one. Only A will be the answer for that one. Correct option. 22 देखो बेटा जल्दी से. सेकंड ऑप्शन क्यों बेटा सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं? कौन सा सेकंड ऑप्शन? बी ओनली. बी ओनली क्यों होगा बेटा? टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज फाइनाइट. एक्सटर्नल सिस्टम नहीं होना बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम मस्ट बी 0, फाइनाइट नहीं होगा. ओके चलो नेक्स्ट वन देखो 22. एन ओपन वाटर कंटेनर
tight railway wagon of mass 5 into 10 to the power of 3 kg coast at initial velocity 1.2 without friction on a railway track. Rain falls vertically downwards into the wagon. What change occurs in kinetic energy of the wagon? It has collected 10 to the power of 3 kg of your water particulation. ये थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन ही है बेटा, टाइम लगेगा. मैं इसको रेगुलर क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन यू ट्राई टू डू इट आउट. Next one, I'll देखो, ball rolls off the top of the staircase with horizontal velocity of 1.8. The steps are 0.2 meter high and 0.2 meter wide. Which step will it hit the first? ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, आप लोग ने करा ही होगा डायरेक्टली. डिस्टेंस से ट्रैवल यानी ऐसा वाला होता है बेसिकली. मान के चलो ये हो गया बॉल यहाँ पर और यहाँ पर आके कहीं पर प्रोजेक्टाइल हो रहा है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे आपको? y is equals to your g into your x square divided by 2 into your u square. अपने को निकालना है n पार्ट, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? n हो जाएंगे बेसिकली. तो n विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस इसका, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? x विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ योर b. ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो n वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसमें से? बताओ जल्दी से. x की वैल्यू इसमें डाल दो आप, तो y में डाल दो x की वैल्यू. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो बेटा, y इज इक्वल्स टू g इंटू इट इज n स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर u स्क्वायर. तो n की वैल्यू इसमें से निकालो. n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास g स्क्वायर n स्क्वायर पार्ट एफ्लेशन, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर y पार्ट. इसमें से निकाल लो बेटा जो भी है. वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास g इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू यू स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास n इंटू योर b. तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, विल बी गेटिंग द फॉर्मूला. वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू 2h इंटू योर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू योर b स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, विल गेट द आंसर फॉर दैट वन. 24 देखो बेटा, with what minimum acceleration can a fireman slide down a rope while braking strength of the rope is 2 by 3 times of its weight? This is a direct question. I hope you might have been done for this one. Tension will be equal to how much better? ऊपर जा रहा है तो it is moving in the down. So T is equal to your m into your g minus of your e. Tension कितना है मेरे पास? 2 by 3 times of your mg है. So that is equals to your m into your g minus of your e. Third option. mm gets cancelled right now for that one. तो acceleration कितना आ रहा है देखो जल्दी से? 1 by 3, यानी ये हो जाएगा ये is equals to g minus of 2 by 3 times of g. तो ये बन जाएगा 1 by 3 times of g. Third option will be the answer. फोर्थ वन इज अगेन ए गुड क्वेश्चन. ये भी मैं क्लास में कभी कर दूंगा, याद दिला देना फ्रिक्शन जब करेंगे हम लोग. अदरवाइज नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इन द गिवन टाइम. तो ये था अपना पेपर. इसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वर इजी, ओनली द 5 क्वेश्चंस वाज लिटिल बिट ऑफ लेंथी कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे वाले क्वेश्चंस भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, चलो क्लियर है? क्या है बेटा Yes. ये? ठीक है ना. पेपर डिस्कशन फास्ट ही होगा बेटा, बिकॉज आप लोग को फॉर्मुलेस याद करके एग्जामिनेशन लिखना है. ऐसा नहीं है कि हम लोग हल्लू बोलते रहेंगे. अब कल मंडे मॉर्निंग की भी क्लासेस थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं रेडीमेड मटेरियल यूज करूंगा फॉर डूइंग दैट वन. आई विल बी नॉट राइटिंग मच, सो मेक श्योरली दैट हम लोग को मैक्सिमम सिलेबस अप्रैल मंथ में खत्म करना है. तो लिटिल बिट फास्ट जाएगा, और राइटिंग नहीं होगी तो लिटिल बिट ऑफ योर फास्ट ही चले जाएगा. सो विल बी स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुमारो. ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय.